হলাম সৈয়দ সারাওয়া থেকে, হযরত আরিফ শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি মাজার শরীফ থেকে। তো ওই দরগা থেকে বার হয়েছি। আমাদের এবারে নেক্সট যেখানে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে মাউইমা চিটাগাঁও, চিটাগাঁও। তো ওখানে হযরত সাদুল্লাহ আমাদের আরিফ শফি রহমাতুল্লাহ আলাইহি খলিফার খলিফা। আমি যদি কোনো ভুল করে থাকি কেউ কমেন্টে জানাবেন, কোনো যে ভুল বলছি। তো এখন আমরা হাইওয়েতে আছি। এখন যেতে সময় লাগবে এখান থেকে সৈয়দ সারাওয়াত থেকে 1 ঘন্টা দেখাচ্ছিল, কিছুটা আগে চলে এসেছি। এখন 53 মিনিট লেফট, 45 কিলোমিটার দেখাচ্ছে। রাস্তা খুব ভালো, তার আগেই পৌঁছে যাব। চলো তোমাদের রাস্তাটাকে একটু এনজয় করাই। কালকে রাত্রে যখন এসেছিলাম প্রচুর ফগ ছিল, কিছু ভিডিও শ্যুট করতেও পারিনি, কেন করলেও কিছু দেখা যাবে না। তো ওখানে যখন সারাদিন ঘুরলাম, সকাল থেকে ঘুরলাম, এত ভালো লেগেছে, মনে এত একটা মানে আনন্দ পেয়েছে। রুহানিয়াত যেটা হয়, যে রুহানিয়াতের যে মজা, যেটা তো দেখানো যা সম্ভব না, যে মনের অন্তরের ভেতরে যে ভালোবাসা, যে খুশিটা যেটা জাগ্রত হয়, সেই জাগ্রতটা মানুষের সাথে শেয়ার করা যায় না। তো সেই রুহানিয়াত মজাটা পেয়েছি। আর সফরটা যে ক্লান্তি ছিল, যে একটা হোল নাইট গাড়ি ড্রাইভিং করা, কলকাতা থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত এসছি, তো যেই মানে থাকানটা সম্পূর্ণ জিরো হয়ে গেছে। রাত্রে ঘুম খুব সুন্দর হয়েছে, আর মানে দারুণ এনভায়রনমেন্টটা সব একদম পারফেক্ট। তো আজমিরের সফর আমার যেরকম চেয়েছিলাম পারফেক্ট সেই হিসাবেই এখন পর্যন্ত আমি দেখতে পাচ্ছি যাচ্ছে। আর এরপরে আমরা এখান থেকে হাজিরি দিয়ে এখান থেকে সোজা চলে যাব আমার প্রিয় মুর্শিদ শাহেনশাহ কুল্লাল্লাহ শাহ মাজারে। তো ওখানে ওনার নওয়াজা পীরজাদা মুনির মিয়া সাকিয়াস চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহির উরস মুবারক আছে। তো ওরা উরস মুবারকে আমরা শিরকত করব, হাজিরি দেব। আর আমাদের প্ল্যানিং আছে উরসে হাজিরি দেওয়ার পর রাত্রে আবার বার হয়ে যাওয়া, কেন ছটি শরীফ আর 2 দিন মাত্র বাকি। ফ্রাইডে নাইট ছটি শরীফের রাত, স্যাটারডেতে দিন আছে। তো গরিব নামাজের ছুটির জন্য টাইমটাকে খুব কম সময়ের মধ্যে আমাদের সব জায়গায় হাজিরা দিতে হবে, প্লাস সব জায়গায় সেখানে পৌঁছাতেও হবে। তো আজমির শরীফে পৌঁছাবার জন্য রাস্তা প্রায় কম বেশি 1000 কিলোমিটার বাকি আছে। তো সেই হিসাবে আমাদের হাতে খুব সময়টা কম। আর কিছু এমন দরগাও আছে আমাদের সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা আছে, রাস্তার মধ্যে পড়বে, সেখানে আমরা হাজিরিও দেব। তো ওভারঅল যে প্যাকেজটা আছে আমাদের ঘোরার, তো সুন্দর দারুণভাবে সেট করা আছে। সময়ের মধ্যে যদি সব কিছু ঠিকঠাকভাবে চলে তো আমরা কমপ্লিট করে দেব। সামনে আমাদের এক্সপ্রেসওয়েটা দেখো, খুব সুন্দর। ইউপি রাস্তা খুব ভালো। আমাদের এখানে যোগী বাবা আর নরেন্দ্র মোদী দারুণ ওয়ার্কিং করছে। খালি রাস্তা আর কিছুই নেই, ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিছুই নেই, খালি রাস্তা বানিয়ে। मास्टर जी को देखो, आगे तो कॉल करो, चलो जी आगे बोलो जी। मास्टर जी भूस को ढुक दो। ये है यूपी का विलेज। देखो भैंस, देखो खेत, देखो गाय, देखो बकरी, देखो
এটা ব্লক করবে, একটু সামনে তো সামনে বসে দেবো না, ধরো না, এসে গেছে ওখানে তুলবে, এসে গেছি এই তো এই ঘরটা। বন্ধ করো। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई वाह, बड़ी हिम्मत करे यार, बड़ी हिम्मत भाई, क्या बात है। यहाँ पे हाजिरी था ये है भाई। वाह भाई, अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत दिन से इरादा था हाँ। अभी उधर जाएंगे इधर जाएंगे, हाँ। तो वो चलो बोले घूम लेते हैं। बैठ बैठ, अरे वाह भाई वाह, बैठ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बैठ बैठो बैठो, बहुत अच्छा। आप हर महीने 10 तारीख की बड़े पीर साहब की फातिहा करते, कव्वाल वगैरह थे, महफिल हो रही थी, तो इनका कैंप वहाँ था, अधिकारी थे, तो इन्होंने अपने अर्दली को, पीयून को भेजा, यार देखो कहाँ शोरगुल हो रहा है, इस तरीके से नींद नहीं आ रही, नींद में खलल पैदा हो रहा है। तो अर्दली जब गए वहाँ तो उनको अच्छा लगा, वही बैठ गए। अब आप इंतज़ार करते करते नहीं आए तो खुद ही आप उठ के गए। जब खुद ही उठ के गए तो हज़रत शाह खादिम सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हज़रत क्या शोरगुल मचाए हुए हैं, नींद में खलल पैदा कर रहे हैं। तो आपने कहा कि यार अगर बग़ैर मज़ामीर के कव्वाली हो तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ढोलक हारमोनियम ना बजे। तो उनका था ये कैसे हो सकता है कि ढोलक हारमोनियम ना बजे, उसके बाद कहा अगर अपने आप बजने लगे तब कोई दिक्कत आपको। कहा ये तो संभव चीज़ तो नहीं लगती। कव्वालों से आप बैठ गए, बगल में बैठा लिया, कव्वालों से कहा कि पढ़ो। उन्होंने जब शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो कोने से ढोलक हारमोनियम की आवाज़, साज निकलने लगी। साज निकलने लगा तो हज़रत साहब सफ़ीपुर शरीफ रक़्स आया, मस्जिद आ गया महफिल में, तो साथ साथ फिर बाराबंकी के परदादा में साहब को रक़्स वजद आ गई। अब महफिल ख़त्म हो गई, आपको वजद तारी ही थी रात भर। अब आप फजर की नमाज़ हुई, बंद हुआ, उसके बाद नमाज़ पढ़ने गए मस्जिद में, महफिल ख़त्म हो गई, फातिहा हो गया, वो आपको वजदा ही था। गिरे, उठे गिरे। जब आप आए, नमाज पढ़ के नाश्ता वाश्ता करके कहा यार देखो वो SDM साहब का क्या मामला है, कहा साहब वो तो उसी हाल में मस्त। तो आप गए, आपको सीने से लगाया, कस के दबाया, उसके बाद फिर आप बैठ गए, गिर गए पैरों पे। फिर आपने कहा यार तुम्हारे नौकरी की ऑफिस की दिक्कत, देर हो रही होगी, ऑफिस जाएं, आप देखें कहाँ। कहा हुजूर ऑफिस हमने वहीं से, अर्दली था ही साथ में, इस्तीफ़ा नामा लिखा और कहा इस नौकरी से बेहतर कोई नौकरी नहीं है, इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद आपने बैत की तलब हुई, बैत किया, फिर आपको कहा कि आप अब अपने घर, आपका घर मनियाँव है लखनऊ में, पहले काकोरी के रहने वाले थे, बाद में मनियाँव में शिफ्ट हो गए थे, जहाँ आपके मजलिस छोटे साहबजादे हज़रत गुलाम सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार वहाँ है। वहीं एक जो मस्जिद आपकी है, ये वजहन शाह की मस्जिद के नाम से उस ज़माने में मशहूर थी, जंगल था, क्योंकि ये तब लखनऊ था, बाराबंकी ज़िला तब नहीं था, लखनऊ से काट के बना है। तो वहीं कहा कि जाके अल्लाह की इबादत करे, कुछ आपने बता दिया था। तो अब गए वहाँ मुसल्ला पे, एक मुसल्ला दे दिया आपको, बिछा के, कहा जब अल्लाह खाना देना तो खाना नहीं दे।
10 दिन 12 दिन हो गए। भाई एक बड़ा आदमी जो रोज़ खा रहा है, नौकर चाकर, उसको अगर खाना ना मिले तो किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा होगा। इबादत करते रहे। बाद में आपकी अहलिया जब कोई ख़बर नहीं मिली तो ढूंढते ढूंढते निकली, पता लगा कि वहाँ हज़रत साहब की बारगाह में गए थे, वहीं से नहीं मालूम चला। जब वहाँ गए तो आपने पूछा, साहब वो आए थे, कहाँ आए तो थे, लेकिन बेटा वो परेशानी में है, तुम यहीं खानकाह में रुको, जो नमक रोटी खानकाह में होगा फ़कीर मिलेगा। तो आपने कहा साहब अगर उन्हीं के पास भेज दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो आपने कहा बेटा उनको कुछ खाने को नहीं मिलता। वो कुछ दिन बाद मुसल्ले के नीचे से 50 ग्राम दलिया मिलने लगी थी। रोज़ सुबह मुसल्ले के नीचे मिल जाए, उसी दलिया को पका के और जो है खा लेते थे आप। कहा बेटा उनको 50 ग्राम दलिया मिलती है, उसमें वो खाएंगे कि तुमको खिलाएंगे। कहा हुजूर उन्हीं के पास भेज दे, दलिया पका के हम उनको खिला देंगे, जो हांडी में लगा रहेगा नीचे उसको धुल के हम पी लेंगे। जब ऐसी सोच है बेटा जा। आप चली गई, यही मामूल चलता रहा। कुछ दिन साहिबजादगान अब परेशान की, वो अब्बा भी चले गए, अब अम्मा भी चली गई, अब वो किसके सहारे जी। जो अगल बगल मज़ार दोनों हैं बाराबंकी शरीफ में ना, आप 2 साहिबजादगान आपके ये है, हज़रत शाह मेहराब से पिछला, हज़रत शाह मशहूर से फिर एक साहिबजादा आपके मनियाओं में। तो वो लोग भी ढूंढते 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 निकले, पता लगा कि उसी खानकाह में गए थे। वहाँ से कहाँ गए, जब आप लोग पहुँचे तो हज़रत शाह खादिम सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बेटा अम्मा अब्बा तुम्हारे मुश्किल के दौर में हैं, तुम यहीं खानकाह में रहो, जो मिलेगा फ़कीर के पास जो होगा खिलाएंगे, तुम लोगों की तालीम तरबियत भी हम करेंगे, हमारे पास रहो। कहा हुजूर अगर माँ बाप के पास ही भेज दिया जाता तो हम लोग ज़्यादा बेहतर होता। तो आपने बताया बेटा उनको 50 ग्राम दलिया मिलती है, दलिया तुम्हारे वालिद साहब खा लेते हैं, जो बर्तन में लगा रहता है उसको धुल के तुम्हारी माँ पी लेती है, इसी तरीके से ज़िंदगी गुजर रही, तुम क्या खाओगे बेटा वहाँ। तो आप तीनों साहबजादा ने कहा हुजूर हमारी अम्मा जब दलिया पकाती होंगी तो किसी से चलाती होंगी ना, कोई लकड़ी से जंगल में। हाँ बेटा चलाती तो होंगी। कहा उस लकड़ी में जो लगा होगा हम लोग धुल के पी लेंगे। इसी तरीके से मामूल चलता रहा। तीनों आदमी को सब, अब 5 लोग हो गए वहाँ। ऐसे रोज़ यही मामूल कई साल चला। एक दिन आपकी वालदा दलिया पका रही थी, इतने में एक साइल फ़कीर मांगने वाले के भेष में आया, कहा भूख लगी। तो आप लोग गए, कहें अम्मा एक मांगने वाले आए हैं, भूख लगी है, खाना मांग रहे हैं। तो आपने कहा बेटा उनसे कह दो पक जाए, देती हूँ। फिर आए, कहा बाबा अभी पक रहा है, पक जाए, बैठे आप दे दे। वो कहने बेटा भूख लगी है बहुत तेज़, ले आ। फिर आप गए तो फिर आपके वालिदा मोहतरमा यही कहें बेटा कह दो पक जाए तो देते, थोड़ी देर इंतज़ार कर लें। फिर नहीं। फिर हज़रत साहब अपने वहीं कहीं हुजूर में बैठे थे। जब तीसरी बार गए, तीसरी बार भी उन्होंने यही कहा। हज़रत साहब ने आवाज़ दी बेटा जिस हाल में हो उस हाल में ले जाके दे दो। अध कच्चा टाइप का कुछ ऐसा था, वो हांडी उठा के ले आए, उनको दे दिए। उन्होंने हांडी पकड़ी और ज़मीन पे पटक दिया। कहा आज मैंने असलाफ की हांडी तोड़ दी। जिस तरीके से दाने बिखरे हुए हैं
इसी तरीके से हज़रत शहंशाह कुल्हुल्लाह की ज़ुर्रियात पूरे आलम में बिखरेगी। इनके मानने वाले होंगे पूरे आलम में इस तरीके, जिससे दाने बिखर गए हैं इसी तरीके से बिखरे हुए होंगे पूरे उसमें। और आज देखें कहाँ आप कलकत्ता, कहाँ हम इलाहाबाद, कहाँ उधर बहराइच, कहाँ कहाँ से लोग उसी दाने के एक हम लोग वो हिस्से हैं जो दाने बिखरे हुए थे। उसके बाद भी खानकाह हमेशा तवक्कुल पे। हज़रत साहब के ज़माने में चूँकि हर ज़माने में कुछ पैसे वाले होते हैं, कुछ नहीं, कमज़ोर होते हैं बेचारे। तो खानकाह तवक्कुल पे थी, अल्लाह के लिए जी रही थी। अल्लाह देगा तो खाएंगे, नहीं पाका करेंगे। हफ्ता 10 दिन रोज़ यही मामूल चलता था। जब लोग उर्स वगैरह में जाए हैं तो जो पैसे वाले लोग थे वो होटल वगैरह ले ले, चूँकि उस ज़माने में घोड़ा वोड़ा से लोग चला करते थे, इक्का बग्घी से चला करते थे। और जो गरीब रहा करते थे वो सड़क के किनारे टेंट लगा के रहा करते थे। इस वजह से कि खानकाह पे हम बोझ ना पड़े। खानकाह वैसे ही अल्लाह तवक्कुल पे है। एक दिन हज़रत साहब को मालूम चला कि लोग बाहर रुका करते, तो आप एक नमाज के वक्त मस्जिद में गए तो आपने लोगों से कहा कि नमाज के बाद आप लोग रुकिए। जब नमाज के बाद रुके आप, तो नमाज फारिग होने के बाद आप मिंबर पे खड़े हुए, कहा सुना है आप लोग खुद और अपनी सवारियों को बाहर रहा करते हैं और खड़ा करते हैं, इस वजह से कि खानकाह पे बोझ ना पड़े। आज से आप लोग खुद और अपनी सवारियां सब खानकाह में ले आए। फ़कीर के पास एक रोटी होगी तो एक रुकमा ज़रूर खिलाएं, और उस लुक़मे से ईमान में हलावत और दिल में नूर पैदा होगा। आपके पास आज फाका, हम खुद फाका है तो मैं आपको क्या खिलाऊँ? तो भूखे रहा करते थे। जब कभी कहीं से इंतज़ाम हो जाए तो चाहे एक ही लुक़मा मिले सारे
देख के फिर उठा न सके हमें एक डर के सिवा सर कहीं झुका न सके उठाया है तो हमी ने बसत नयाज सही गुब्बारे गम के फरिश्ते जिसे उठा न सके मायल बसचता है जबी मायल बसचता है जबी इसलिए बार का मायल बसचता है जबी इसलिए बार का मायल बसचता है जबी इसलिए बार का मायल बसचता शायद कुल हो अल्लाह मायल बसचता है जबी
वासियों का ये बाबा है आशिकों का ये किबला है वासियों का ये किबला है वासियों किबला है किबला 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 है वासियों का ये काबा है आशिकों का ये किबला है वासिलों का ये अहले जुनूनो जज्ब की अहले जुनूनो जज्ब की नजरों में सच का है अहले जुनूनो जज्ब की नजरों में सच का अहले जुनूनो जज्ब की अहले जुनूनो जज्ब की अहले ये मैं कहता है साहिदो पापे हरम नहीं है ये मैं कहता है ये मैं कहता है साहिदो पापे हरम नहीं है ये अपना वजूद ही यहाँ अपना वजूद ही यहाँ सबसे बड़ा गुनाह है अपना वजूद ही यहाँ सबसे बड़ा गुनाह है। वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, एक गांव गए थे। अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने कहा हुजूर वालिद साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको बख्श दे। तो सुल्तान जी ने पूछा, कहा क्या वो मुझसे मुरीद थी क्या? कहा नहीं साहब, आपसे मुरीद तो नहीं हो पाए थे। कहा हमसे कभी उनकी मुलाकात थी? कहा हुजूर आपसे मिल भी नहीं पाए थे कभी। फिर आपने कहा क्या हमारे गांव से, तब तो गयासपुर गांव था दिल्ली का, हमारे गांव से कभी रास्ता गुजरे हैं? कहा हुजूर एक बार इस गांव से रास्ता गए। कहा यही काफ़ी। कहा यही काफ़ी। जब इनके गांव से रास्ता गुजरना बख्शिश का सामान हो सकता है, तो इनकी बारगाह की हाजिरी, इनकी राह में खर्च करना कहाँ तक क्यों नहीं होगा? बुजुर्गों की बारगाह की हाजिरी होनी चाहिए, और जो माल इनकी राह में खर्च हो। बाकी तो इंसान, अगर हम आप अभी जोड़ें तो कई कुंटल गेहूं चावल खा के लैट्रिन कर दिए होंगे, कई कुंटल। और जब से पैदा हैं आपसे कई लाख रुपए अपने ऊपर खर्च हुए हैं, लेकिन सब फजूल की चीज़ें हैं। इन बुजुर्गों की बारगाह का 10 रुपए कल बोलेगा। यही हमारी कमाई। अल्लाह फरमाता है वजाहदू फी सबीलिही बेअमवालिही व अनफुसिहिम। अल्लाह की राह में मुजाहिदा करो, माल है तो माल के ज़रिए, नहीं तो अपनी जान के ज़रिए। मान लें बाराबंकी शरीफ खानकाह शरीफ बन रही है, हमारे पास पैसा उतना नहीं है कि हम दे सकें। अगर माल है तो जो कुछ हमसे हो सकता है साहब हमारा भी कुछ लग जाए, नहीं तो हम 2 ईंटा किस उधर कर सकते हैं ना। जान भी तो उसी की है ना सही तो 2 दिन टाइम तो दे सकते हैं ना।
अल्लाह के लिए बैठे हैं अपना कारोबार छोड़ के। वजाहदू फी सबीलिही बिअमवालिही व अनफुसिहिम। अल्लाह कहता है अल्लाह के राह में मुजाहिदा करो, अल्लाह के राह में जो जिहाद करो, इबादत करो। किस तरीके से? माल है तो माल के जरिए, नहीं तो अपनी जान। और अगर जान भी हम उसकी राह में दे दें तो अपना क्या दिए? जान दी हुई उसी की थी, जान भी दिया तो उसी के, तो उसको वापस किया, अपना क्या दिया? जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा नहीं। अगर जान भी दिया तो उसी का दिया, माल भी दिया तो उसी का दिया, अपना क्या दिया? जिसके पास जो है किसी भी शक्ल में हो, आल की शक्ल में हो, माल की शक्ल में हो, जान की शक्ल में हो, किसी की अमानत जब चाहता है ले लिया। भाई हमारा बहुत बड़ा बेटा हो, जवान हो, अगर हमारी अमानत हो तो कज़ा आए, मौत आए, उसको हम रोक ले न जाने। इसका मतलब वो जिसकी अमानत थी। हर मालिक को अपने ममलूक में हुकूमत करने का हक होता है। आपके पास कारोबार बिजनेस है, अब उस बिजनेस में हम आज दुकान बंद करेंगे, खोलेंगे, हमारा राइट। तुम उस पार्टी को माल देंगे नहीं देंगे, हमारा राइट है ना। रात में हम सुबह 10 बजे दुकान खुलती है, आज हम 2 बजे खोलेंगे, हमारा राइट है। जिस तरीके से हम उसके मालिक हैं, उस प्रॉपर्टी में, उस बिजनेस का दखल जैसे चाहूँ मैं करूँ। उसी तरीके से ये कायनात अल्लाह की ममलिकत है, मालिक है ना। वो जैसा चाहे इस कायनात में तसर्रुफ करे, किसी को दे, किसी को ना दे, किसी से ले, किसी को इतना दे संभाल ना पाए। हम तो अपनी प्रॉपर्टी की इस तरीके से तसर्रुफ करते हैं कि आज दुकान नहीं खुलेगी, आज हमारे भाई की शादी है, वो कहेगा कि आज तुमको वापस ले लेंगे, बहुत तुम जी लिए। तो हम तो फ़ानी इंसान तसर्रुफ करे, और जो ज़ात बारी है वो तसर्रुफ ना करे अपने मिल्कियत, जैसा चाहे वैसा करे, जिस हाल में चाहे उस हाल में रखे। और अल्लाह इम्तिहान लेता है। अल्लाह कहता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। मैं आजमाऊंगा तुमको, तुम्हारे अंदर डर पैदा करके, भूखा रख के, तुम्हारे मालों में कमी करके, तुम्हारे जानों पे परेशानी डाल के। जब तुमको पाऊंगा, साबित कदम है, अल्लाह पे साबिर और शाकिर है, तब कहता है वबश्शिरिस साबिरीन, बशारत दूंगा कि अल्लाह पे सब्र करने वाला साबिर में अल्लाह के। कहा मैं अल्लाह आजमाऊंगा, इस चक्कर में मत रहो। भाई जिसका जितना बड़ा कारोबार उसकी उतनी बड़ी आजमाइश। एक फुटपाथ पे दुकान वाला नगर निगम वाले आए और दुकान ठेले लेके भाग गया, और एक इस्टेब्लिश बड़ा जिसका सिस्टम हो तो उसके यहाँ जीएसटी वाले भी आ रहे हैं, स्टेट जीएसटी भी आ रही है, इनकम टैक्स भी आ रहा है, ये सेल्फ टैक्स भी आ रहा है, उसके ऊपर बड़ी बड़ी आजमाइश है ना उसकी। तो अल्लाह जिसको जितना दिया करता है, चाहे दुनिया दे या दीन दे। देखें, अगर आप इश्क का दम भरते हैं इन यार से, अल्लाह से, तो जितना बड़ा आशिक उतना बड़ा इम्तिहान। भाई एक क्लास फर्स्ट में पढ़ने वाले बच्चे का इम्तिहान उस लेवल का होगा, और एक एमएससी और पीएचडी करने वाला का उसका उस लेवल से होगा। हाँ, अगर आप आशिक इश्क का दम भरते हैं हाई लेवल का, बड़ा 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 आशिक बनना चाहते हैं, तो इम्तिहान भी बड़ा ही देना चाहिए। और इम्तिहान होता किस लिए है? इम्तिहान सज़ा नहीं, इम्तिहान तरक्की के लिए हुआ करता है। भाई किसी ने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया है अगर बोर्ड का, तो उससे इम्तिहान इसलिए लिया जा रहा है उसको 11 में प्रमोट किया जाए, उसको 9 में थोड़ी करने के लिए, 8 में थोड़ी करने के लिए, उसका इम्तिहान इसलिए है कि उसको प्रमोशन दिया जाएगा। उसी तरीके से आशिकी का इश्क है।
जितना बड़ा इश्क का दम उतना बड़ा। आपका भाई नहीं है? आपके बाजू में जो बिटता है आपका भाई तो है? नहीं, वो कजिन है, कजिन है? मियाँ साहब का खलीफा है। अच्छा। उधर है, वो भी इन्हीं के साथ पढ़ाता है। हम 2 ही भाई हैं मास्टर साहब हम। नहीं, आपको लगता था वो आपका भाई है? नहीं। हर टाइम बैठता भी है? हाँ, बैठता है साथ में, लेकिन उसका घर उधर मजा से ही करो। भाई की रात है? जी ले निकाला निकाला।